Good morning, students. Today we are going to discuss our first lesson in English subject. The name of this lesson is A Letter to God, in which we are discussing the faith of a person over God. Uh, in two-line explanation, the crop of the particular person has been destroyed by the hailstorm, and by his deep belief in God, he write a letter to God asking him for money as his crop was destroyed because of hailstorm. Whether he get the money from the God, if yes, what amount of money he get from God, what did he reply to the God. So we are going to discuss all these points in this lesson. So at the starting of the lesson, these are the activity. Inside the post office, go to the counter, mark money order. Because of the pandemic of corona, I should not advise you to go on such particular places. So the lesson has been start. First, the location of the house of the farmer has been described in the first paragraph. So what is the thing? The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. From the height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. So the house was located on the top of the valley, where anyone can see the scenery of the nature. Around has been you can see the nice field of ripe corn. Ripe corn means जो पक गए थे. With dotted flowers that always promise, जो वादा करते थे एक good harvest. That means फसल बहुत बढ़िया हुई थी इस साल. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट शावर. हल्की सी बारिश की बस ज़रूरत रह गई थी थ्रू आउट दी मॉर्निंग. लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now as you have been told, the corn was ripe, so there was nothing to do in the field. मतलब कि वहाँ कुछ करने के लिए ज़्यादा था नहीं. ओनली अब क्या करना था, फसल को वो करना था, रीपिंग करना था, यानी काटना था उसको. ओनली थिंग्स विच वॉज नीडेड वॉज अ लिटिल रेन. हल्की सी बारिश की बस ज़रूरत थी, सारा कुछ सही हो जाता. नाउ द एक्चुअल डायलॉग हैज़ बीन केम आउट. Now we are really going to get some water woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." तो जब बादल देखता है लैंचो, तो वो कहता है उस दिन अपनी वाइफ से that today is the day we may get some water from the sky. आज के दिन हमें कुछ पानी मिल सकता है आसमान से. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." ईश्वर की इच्छा है, मिलेगा तो मिल जाएगा. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that just as the Lancho had predicted. अब देखिए, हम जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो यहाँ से है. नाउ वी आर यहाँ से लेकर यहाँ तक का. Now we are really going to get some water woman. आज के दिन हमें कुछ पानी मिल सकता है. The woman who was preparing supper. Supper means to say a kind of dinner. Replied, "Yes, God willing." ईश्वर की इच्छा है, हमें मिलेगा ज़रूर. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the field. तो जो बड़े बच्चे थे वो तो खेतों पे काम कर रहे थे, छोटे वाले किनारे पे खेल रहे थे. जो वाइफ थी उसकी, उसने उनको बुलाया, "Please come and take your dinner." It was during meal that just as Lancho had predicted. वो खाना खा ही रहे थे. Lancho had predicted means भविष्यवाणी कर दी जो की थी लैंचो ने, वो सही साबित हुई. Big drop of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. तो बड़े बड़े काले बादल दिखाई दिए आते हुए, देखे जा सकते थे. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. खाना खा के वो लोग तुरंत बाहर निकले, और कोई कारण नहीं था, केवल वो रेन को अपनी बॉडी पर फील करना चाह रहा था. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." उसने कहा, जो वो बाहर से आया, he replied pleasantly to his wife that this is not the rain. Actually
द बिग रेन ड्रॉप are claimed as new coins. The big one are called 10-cent prices and the little ones are called for 5. With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers. अब उसके एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से उसने कुछ कहा, देखिए क्या कहा, कहाँ से हम उसको देखते हैं. With a pleasant with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. जब उसने देखा कि उसकी जो खेती थी पूरे की पूरी फील्ड पे एक पानी का चादर सा पड़ गया, यानी खूब तेज बारिश हो रही थी. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगेन टू फॉल. लेकिन उसकी सारी खुशी गम में बदल गई जब उसने देखा कि एक बड़ी सी हवा के झोंके ने जो पानी बरस रहा था उसको बदल के उन पानी की बूंदों को ओलों के गोलों में परिवर्तित कर दिया. दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. अब ये 5 और 10 सेंट के सिक्के नहीं रह गए थे, अब ये बदल गए थे चांदी के सिक्कों में. एंड दिस हैज़ नॉट बीन प्रेडिक्टेड बाई दी Lencho. Actually this has been predicted by the boys exposing themselves to the rain out to collect the frozen pearls. वो बाहर बारिश में दौड़ के जा रहे थे ये पता करने कि ये जो न्यू सिल्वर कॉइन्स हैं उनको वो कलेक्ट करने जा रहे थे. These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain out to collect the frozen pearls. It really is getting bad now. Exclaimed the man. मैन ने कहा अब गड़बड़ हो गया सब कुछ. ठीक है, आई होप इट पासिस क्विकली. लेकिन वो ये कह रहा था कि ये जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ख़त्म हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली, बट वो जल्दी गया नहीं. फॉर एन आवर द hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. ये 1 घंटे तक ये ड्रामा चला, पानी बरसता रहा, पानी के साथ ओले बरसते रहे. और इसके बाद जब वो रुका तो आप उसे ऐसे देख सकते थे कि जैसे यहाँ पर खेत ना हो, ये एक ऐसी जगह हो जहाँ पर सॉल्ट बिखरा पड़ा हो, पूरे में नमक की चादर जैसी लग रही थी. नॉट अ लीफ रिमेन, एक पत्ती नहीं बची थी पेड़ों पे. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. जो पूरी खेती थी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. फसल बर्बाद हो चुकी थी और लेंचो का जो हृदय था हैज़ बीन फिल्ड विद द सैडनेस. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड he stood in the middle of the field and said to his son. जब सब कुछ शांत हो गया तो उसने अपने खेत के बीचों बीच खड़े होकर कहा a plague of locusts. locusts means होता है टिड्डी दल. would have left more than this. अगर एक टिड्डियों का भी हमला होता हमारी खेती पे तो भी इससे ज़्यादा बच जाता. the hail has left nothing. इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. this year we will have no corn. इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा, मतलब हमारे पास एक दाना नहीं होगा खाने के लिए. दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन. जो नाइट थी ये बहुत ही कैसी थी, दुख से भरी हुई. ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग. कितना साल, 6 महीने 4 महीने जो हमने मेहनत की सब बेकार हो चुकी थी. देयर इज़ नो वन कैन हेल्प अस. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. तो इस साल हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, हम क्या करेंगे? दीज आर द क्वेश्चन विच यू हैव टू डू विद योर सेल्फ. सेकेंड पैराग्राफ. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दिस सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. लेकिन सबके दिल में जो इस आइलैंड पे, इस वैली पे अकेले अकेले रहा करते थे, देयर वॉज अ. देखिए एक चीज़ सपोज करिए, वहाँ केवल लेंचो ही नहीं बाकी लोगों के भी खेत थे और उन सबके भी खेत बर्बाद हो गए. तो दैट मीन्स सबके मन में अब ये तो उम्मीद नहीं थी कि कोई मदद करेगा, बट एक आशा की किरण ये जल रही थी कि देयर वॉज अ सिंगल होप. एक उम्मीद जरूर थी और वो उम्मीद थी भगवान. तो देखिए अब क्या होता है. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज फॉर हंगर. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. तो ये बात कही लेंचो ने अपने बच्चों से. कहा डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत होइए. इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. ऐसा लग जरूर रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया. रिमेंबर, लेकिन याद रखिए कोई भी भूख से नहीं मरता है. ये एक कहावत है जिसका मतलब होता है इफ़ यू आर डूइंग एफर्ट्स यू विल सर्वाइव. तो दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज फॉर हंगर ऑल थ्रू द नाइट. पूरी की पूरी रात लेंचो थॉट ओनली
his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. लैंचो का बिलीफ ये था कि वो एक ऐसी ताकत है जो सबके आवाज़ों को सुनती है, भले ही वो आवाज़ उसके अंतरात्मा में उठ रही हो. मीन्स आप बोल नहीं रहे हो, बट आपके अंदर क्या चल रहा है वो परम शक्ति जान सकती है. See everything, even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Lancho was an ox. देखिए यहाँ पर an ox का मतलब Lancho बैल नहीं था, बट उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, जिसको आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़, यानी कि एक तरह से उसका जो व्यवहार था वो बैलों वाला था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, तो जानवरों की तरह खेतों में काम करता था. बट स्टिल ही नो, बट सम हाउ ही नो हाउ टू राइट, किसी तरह वो जानता था लिखा कैसे जाता है. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. So he has an idea. He took a paper, he took a pencil, write some letters to God in language which he know, and he himself take this letter to the mailbox and post it. And in fact this was nothing but a letter to God. उसने, उसके दिमाग में एक आइडिया है, उसने एक लेटर लिखा. लेटर लिखने के बाद उस लेटर को वो खुद लेके गया पोस्ट ऑफिस तक, और वहाँ उसने उसको पोस्ट कर दिया. उसने जो उस लेटर में लिखा था वो लिखा था, गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. गॉड, वी नीड योर हेल्प, इफ़ यू डू नॉट हेल्प अस वी विल हंग्री होल दिस ईयर. हम पूरे साल भूखे रहेंगे. आई नीड 100 pieces in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm destroyed my field. तो उसने उसमें जो लेटर लिखा था उसने लिखा था कि मुझे 100 pieces चाहिए, फॉर रीज़न आई वॉन्ट टू बो माई फील्ड अगेन. सो वो फिर से अपनी जो है ज़मीन को बोना चाहता था. एंड द सेकेंड थिंग, जब तक नई फसल नहीं उगती उसे सर्वाइव करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि हेल स्टॉर्म जो कि आपने बरसाए थे मेरी खेती को बर्बाद कर दिया. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर inside and still troubled went to town. उसने लेटर उसमें एड्रेस जो लिखा जाता है एनवेलप के ऊपर, उसमें लिखा उसने टू द गॉड. लेटर को इनसाइड डाला मेल बॉक्स के और वापस चला आया चिंतित. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. जब वो वेंट टू टाउन, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ बता गया यहाँ पर. ये क्या है, उसने लेटर इनसाइड डाला, उसको जो है पता नहीं था कि कहाँ पे डालना है, तो उसने उस पर टू गॉड लिख दिया और उसके ऊपर और उसको लेके चला गया टाउन यानी शहर. एट द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने स्टैम्प को लगाया लेटर पे एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स पे पोस्ट कर दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज द पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. डेफिनेटली जब लेटर पोस्ट किया जाएगा तो उसको निकाला भी जाएगा, और जब एक पोस्ट ऑफ मैन ने उस लेटर को निकाला और पढ़ा तो उसकी हंसी आ गई, और वो इसको लेके पहुंचा अपने बॉस के पास. नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन ही हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसको इस एड्रेस का कोई भी पता नहीं था. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट. तो फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. जब उसने पढ़ा वो भी हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क. उससे कुछ महसूस हुआ, उसने अपनी हंसी रोकी और मेज पर कस के पटका उस लेटर को और कहा, व्हाट फेथ, कितना परम विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. वो कहता है काश ऐसा ही फेथ मुझे होता जैसे इस व्यक्ति को है जिसने लेटर ही लिख डाला गॉड को, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पेंडेंस विद गॉड, जिसने गॉड के साथ ही व्यापार करना शुरू कर दिया. So dear student, this is enough for today. We will discuss the remaining part of this lesson maybe on tomorrow. Thank you very much.